देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय कोल के मुख्य द्वार पर, जहां पर आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज के द्वारा उद्घाटन किया गया और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार रहेगी। Good afternoon. It is my proud privilege to welcome our worthy Vice Chancellor, Professor B.R. Kamboji, Vice Chancellor CCS HNU Hisar, and also GAU Hisar. We all have assembled here, and it was indeed the wish of all our students and the staff that the facilities which are being created, they must be inaugurated or they must be initiated by the source of the energy, by the source who is inspiring us also. And I really wholeheartedly welcome Professor Kamboji here, who is the source of energy to us also, guidance also, and to be very frank, all these developments which are being taken now here, they are actually the path laid down by him. I also welcome him to his alma mater, and he is a very proud student of College of Agriculture Corps. And it's wonderful to see that what a great love and attachment he has for his alma mater. And whatever we have wished, that has been accorded to us. And we had an assurance that you just go ahead and whatever you will need for the future also, that will be given. We are very thankful to you, sir, for your support. I welcome here Dr. S.K. Pahuja ji, Dean College of Agriculture, Hisar. He is the link between this college and the Alberti Vice Chancellor. All the things what we initiate, and they are taken to its destiny through him at a speed which is unmeasurable. We are really thankful to sir. We are I welcome Dr. Jikram Sharma ji, Director of Research, CCS HNU Hisar. My half part is at Regional Association Call, and he is my immediate boss also. And also we have our Regional Association Call here, and you all know that the strides we are making in the research fields, they are magnanimous. We are really delivered by the speed with which we are progressing. And it is Dr. Jitram ji who is catalyst to have these facilities, have this motivation, and taking all our needs, demands, wishes done through our worthy Vice Chancellor. I sincerely thank you, sir, and welcome you here at College of Agriculture College. After M.S. Puyaji, whatever infrastructure we are developing, we propose to develop
that is through him we are getting. And whatever we could achieve in this very short period of time, and he was the force behind that, I, sir, sincerely welcome you and thank you for that. I also welcome the Regional Director, Dr. Naseer Singh, Dr. Gopinath Rai, Shri, our Superintendent Engineer Jitendra ji, and again the words will be repetition that whatever we demand, it just comes calling to us. We are really thankful to you. And we have seen beautification of our campus, all the buildings. I thank Dr. Paul Kumar, our land space unit officer, and also the controller of examination of CCHU for his generous help. And most of the efforts which we have made in clearing the things, they are because of his team. He has specially sent his 7 persons here well in advance to help us beautify and modify the campus. And also I welcome you, all my dear students. This is your first day to the new semester. And also my scientist fellows from Regional Research Station called and College of Agriculture, my non-teaching staff of both the units, College of Agriculture and Regional Research Station. And again, sir, in the end, I really extend my welcome to our working chancellor to be here, accepting our request to be the chief guest at the inauguration and bestowing us so many things which our students or staff, they have never imagined. Thank you very much, sir. नमस्कार सर। आज हम हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान यहाँ कोल में स्थापित है जी। और यहाँ पे हमारे छात्रों के साथ हम संवाद भी करेंगे ताकि पठन पाठन को हम अच्छे से सुधार सकें। यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी आज आकलन करते हुए यदि छात्रों को आवास की आवश्यकता है उसके बारे में निर्णय लेंगे। उनकी और कोई भी सुविधा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो हमने देखा है कि यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड तो यहाँ पे स्थापित है, लेकिन मल्टीपर्पज़ हॉल की आवश्यकता देखी गई है, उसको भी यहाँ पे बनवाया जाएगा। यहाँ का जो मुख्य द्वार है कृषि महाविद्यालय का, उसका भी आज उद्घाटन किया गया है। इसी प्रकार से आज के दिन हमें स्मार्ट क्लासरूम, ताकि हम जो अच्छे टीचर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, पठन पाठन की जो आधुनिक तकनीकें हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से हम अपने छात्रों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जोड़ सकते हैं। सर, जो आपने स्मार्ट क्लासरूम की बात की है तो इनसे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? बच्चों को जो मैंने बताया कि आज के दिन इस क्लासरूम के माध्यम से एक तो हम अपने टीचर्स के लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे ताकि वो किसी भी समय पे उस लेक्चर को देख सकें, उसका भ्रमण कर सकें। यदि उनको क्लास में कुछ नहीं भी समझ आया वो हो पाएगा। दूसरा, जितनी भी एवी एड्स हैं, कोई चित्र आपको दिखाना है, किताब दिखानी है, इसमें सीधे रूप से हम लाइव सैंपल्स को भी दिखा सकते हैं और इसी के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे संस्थानों से भी अपने बच्चों को यदि कोई ज्ञान हमें दिलवाना है उससे इसको जोड़ा जा सकता है, ताकि भविष्य बच्चों को जो आधुनिक सुविधाएं हैं पठन पाठन की और जो एवी एड्स हैं उनका लाभ हमारे बच्चों को भी मिल सके। सर जैसे यहाँ बात की जाए तो हॉस्टल की, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। वो रूम में भी 3-3 हैं
और वैसे भी मतलब दिक्कतें काफ़ी हैं, बेड की भी दिक्कत है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने जैसा आपको बताया भी था, ये भी बात है कि सबसे पहले तो हम भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के बड़े धन्यवादी हैं कि ये जो स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे बनाया गया है, इसका धन उन्होंने ही उपलब्ध करवाया है। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ सुविधाओं की आवश्यकता है। आज हम यदि यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है तो ये भी निर्णय लेंगे कि यदि नया हॉस्टल बनाने की आवश्यकता हुई तो उसको भी ज़रूर पूरा किया जाएगा। और यदि हॉस्टल के अंदर कोई रेनोवेशन की, मुरम्मत की, किसी सुविधा की आवश्यकता हुई तो उसका हम पहले से ही कार्यरत हैं इस मामले में, और उसके टेंडर्स भी हो चुके हैं लड़कों के हॉस्टल के। लड़कियों का हॉस्टल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी हमारी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही हम इसको पूरा करेंगे। सर, आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कोर्सेज और यहाँ पर मिलने वाले हैं? देखिए, हमारे इस कृषि महाविद्यालय में अभी जो यूजी क्लासेज हैं हमारी, यानी कि कृषि की जो पढ़ाई है 4 साल की, वो यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभी लागू हुई है, उसमें हमारे कुछ इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज भी आएंगे ताकि हमारे बच्चे डिग्री के साथ साथ कौशल को भी अपना सकें और वो बाद में जाकर न केवल नौकरी की मांग करें बल्कि अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो होगी। साथ में इन बच्चों को हम इंडस्ट्री से जोड़ने का भी एक प्रयास रहेगा ताकि बच्चे को यहाँ से निकलने के बाद रोज़गार आसानी से मिल सके या वो सब रोज़गार स्थापित कर सके। इसके साथ साथ हमारा मास्टर प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, उसकी भी कुछ सीटें यहाँ पे हमने शुरू की है और भविष्य में जैसे ही सुविधाएं यहाँ पे बढ़ेंगी उनको और अधिक बढ़ाया जाएगा। मतलब एमएससी के साथ साथ पीएचडी की भी यहाँ पर सीटें की गई हैं? अभी हम जैसे सुविधाएं बढ़ती रहेंगी तो उन सीटों की तरफ भी यहाँ पे धीरे धीरे करके हम वो भी यहाँ पे लेके आएंगे। थैंक यू सर। सर, पिछली बार भी आप यहाँ पर एक कार्यक्रम में आए थे, उसमें भी आपने युवाओं को ज़्यादातर आह्वान किया था और जागरूक किया था कि जैसे सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है और उसके बावजूद आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, तो इसमें कृषि विभाग या कृषि मंत्रालय या प्रदेश सरकार किस प्रकार से युवाओं को अपनी तरफ से सहायता कर सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि कृषि महाविद्यालय में आज भी 100% रोज़गार जो है वो मिल रहा है। हमारा एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। दूसरी जो बात, जैसा मैंने कहा कि पठन पाठन में उस व्यक्ति को, चाहे वो बिजनेस की पढ़ाई है या कृषि से जुड़े हुए किसी भी व्यवसाय की उसको आवश्यकता है ताकि वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके, उसी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पे हमने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है, जहाँ पे बच्चा अपने आप को एनरोल कर सकता है और वो एक छत के नीचे, चाहे प्रयोगशाला से जोड़ने की बात है, चाहे मार्केट से जोड़ने की बात है, चाहे धन के लिए बैंक से जोड़ने की बात है, पैकेजिंग की बात है, ब्रांडिंग की बात है, ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे प्रदान की गई है ताकि हमारा छात्र पढ़ाई के साथ साथ उसके साथ जुड़े और वो भविष्य में अपना रोजगार स्थापित कर सके। सर, क्या संदेश देना चाहोगे छात्र छात्राओं को आज के दिन की बच्चा किस प्रकार अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है? देखिए, हमारे बच्चे निश्चित रूप से किसी भी देश की, मैं कहूँ कि मुख्य जो कड़ी होती है विकास के लिए, उस देश के युवा होते हैं, उस देश के छात्र होते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे छात्रों का चयन भी वो एक बड़ी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के युवाओं को जो सबसे बड़ी बात है कि वो उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको पहचानना है और उसको पहचानते हुए उस दिशा में ही आगे बढ़ना है, तभी निश्चित रूप से उनका लक्ष्य भी हासिल होगा और वो अपना तो विकास करे ही करेंगे।